after doing the definition of micro, small and medium enterprise, let us move further with the role of small business in India. So as I told you already, that small scale industries play a significant role in the socio-economic development of the country. Okay, so let us see what are the various points that point towards the fact of importance of small scale industries in India. So first is bete contribution to balanced regional development. See, in our country there exists regional inequalities. कुछ regions हैं जो बहुत developed हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, Haryana, these are industrially developed regions. Bihar, Orissa, these are backward regions. So small scale sector or small industries, they contribute a lot to the balanced regional development of the country. They basically account for 95% of the industrial units in the country. India में जितने भी industrial units हैं, suppose करो 1 लाख industrial units हैं इंडिया में. Let us take one figure, imagine one figure. तो उसमें से 95,000 small scale sector में, ठीक है? So in this way it plays an important role. It contributes towards the regional balanced regional development. क्योंकि जो छोटे-छोटे regions हैं उसके कर छोटे-छोटे units हैं उसके करके regions जो है वो develop कर सकते हैं, ठीक है? Even underdeveloped regions can set up small scale sector and hence it will contribute to its development. Second, employment. जो small industries हैं बेटे, आप इंडिया में सबसे ज्यादा लोग किस में employed हैं? सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में employed हैं. और second contributor of employment is small industry. ठीक है? After agriculture, small industry is the second largest employer of human resources in India. So जो per unit capital invested, let us say अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं या 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है? उसके पीछे 2 लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलती है. दिस इज employment opportunities created per unit of capital invested. ठीक है? In large industry it is not so. Large industry में से 1 रुपए के पीछे 0.5 को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है? It could be decimals में इसलिए आ रही है क्योंकि रिड्यूस किया ना उसको, ऐसा तो नहीं है आधे लोग को दे देगी. मतलब 1 रुपए के पीछे या पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड these many people get employed, right? बेटे इस तरह से कह लो ना, हमने 100 रुपया इन्वेस्ट किया तो 2 लोगों को या 200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, 100 के पीछे 200 लोगों को, तो रेशो क्या हो गई? 2:1. Whereas इसमें हमने 500 रुपए इन्वेस्ट किया और 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, तो यहाँ पे रेशो क्या हो गई? 0.2:1. ठीक है? तो कौन सा बेनिफिशियल हुआ हमारे लिए? फर्स्ट वन स्मॉल इंडस्ट्री, बिकॉज इंडिया इज अ कैपिटल स्केर्स इकोनॉमी. इंडिया में लेबर सरप्लस है और कैपिटल स्केर्स है, तो हमें वो वाली टेक्निक सूटेबल है जिसमें कम कैपिटल से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो. ठीक है? सो इट्स अ बून फॉर अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी लाइक इंडिया. देन थर्ड बेटे पॉइंट है इंपॉर्टेंस का, वैरायटी ऑफ गुड्स. लॉट ऑफ गुड्स विच यू कंज्यूम टुडे, these are made in small industries. So mass consumer goods, ready-made garments, hosiery goods, stationery items, soaps, detergents, domestic utensils, leather, plastic, rubber goods, processed foods, vegetables. ठीक है? ये सारी चीजें
आज जो आप कंज्यूम करते हो, फर्नीचर, पेंट्स, ठीक है, ये सब स्मॉल इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होती हैं। अब आपको लग रहा होगा अच्छा फिर स्मॉल इंडस्ट्री सिंपल गुड्स जिसमें कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है ना, वही प्रोड्यूस करती हैं। नो, इवन दी सोफिस्टिकेटेड गुड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, LEDs, computers, these are also made in small scale industries. टीचिंग एड्स जैसे कि प्रोजेक्टर्स हैं, ठीक है, आजकल आप एप्स कह सकते हो, वी मेक यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड एप्स। जूम इज एन ऐप, चलो ये लार्ज इंडस्ट्री है, हमारे इंडिया का नहीं है, लेकिन अदरवाइज मेनी एप्स दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल सेक्टर. So it provides you with a variety of goods, and that goods can be simple goods and they can be even complicated goods also, ठीक है, sophisticated items. All right, then small industries which produce simple products using simple technology depend on locally available resources. So हेडिंग, बेटे हर पॉइंट में ना हमने हेडिंग बनानी है. अगर आपको क्वेश्चन आता है ना व्हाट इज द रोल ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर इन डेवलपमेंट, तो अब बुक में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट्स की हेडिंग नहीं दी हुई. अगर आप हेडिंग नहीं दोगे तो मार्क्स कम मिलेंगे, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है. तो ऐसे नहीं कहना कि बुक में भी ऐसे लिखा हुआ था हमने उसको फॉलो किया है, तभी मैं साथ साथ हेडिंग दे रही हूँ आपको, सो दैट यू कैन राइट इट डाउन इन योर बुक्स. पहले की मैंने क्या हेडिंग दी? बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. सेकंड, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोर्स ऑफ, सिट डाउन, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट generation. Third, variety of goods. Variety of goods. Next is use of local resources. Use of local resources. So मैंने आपको ये बताया कि स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है वो सिंपल प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं, सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं. तो वो सेक्टर जो सिंपल प्रोडक्ट्स बनाता है, टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स हो गए, स्टेशनरी आइटम्स होगी, रेडीमेड गारमेंट्स होगी, स्पोर्ट्स गुड्स हो गए, रबर प्रोडक्ट्स हो गए, शूज हो गए, ठीक है, पर्सेस हो गए. दीज जनरली मेक यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज. लोकल रिसोर्सेज मतलब जो आसपास से, इंडिया, विद इन इंडिया ही, और प्रेफरेबली आसपास से मिल जाते हैं. लोकल रिसोर्सेज यानी उनको रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं करना पड़ता. दे मेक यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज. चाहे फिजिकल रिसोर्सेज की बात करो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करो, वो इंडियंस को ही एम्प्लॉय करते हैं, पीपल को, इंडियन पीपल को, और इंडियन टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करते हैं, और इंडिया के रॉ मटेरियल्स ही यूज करते हैं. हाँ, जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी या सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि बना रहे हैं, जैसे कि LED हो गया, तो देन दे मे इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होते, so that we can import, but mostly because small industry focuses on the production of simple products, they procure their raw material from local, they make use of locally available resources, ठीक है. And they can also be widely spread without any locational constraints. ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है स्मॉल इंडस्ट्रीज का कि इसको कोई लोकल कंस्ट्रेंट्स नहीं है. लोकल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया में सेटअप करना पड़ता है अपना एंटरप्राइज. वो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपका जो रॉ मटेरियल है वो हैवी है, उसको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है. जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है. अगर किसी पर्टिकुलर जगह में आयरन एंड स्टील की माइनिंग होती है और आप एक ऐसा यूनिट खोलना चाहते हैं
जिसका रॉ मटेरियल आयरन एंड स्टील है, तो आपको हर एक कोई सजेस्ट करेगा कि आप अपना यूनिट क्लोज टू दी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल सेटअप करो। उससे क्या होगा, जो बेटे आयरन एंड स्टील आएगा ₹1,00,000 का, ₹2,00,000 आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लग जाएगी। ठीक है, राउरकेला से जलंधर तक लाते हुए आपकी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रॉ मटेरियल की कॉस्ट से डबल हो जाएगी। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट? डू यू वांट टू पे दिस मच ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट? सो व्हाट शुड यू डू? set up your enterprise near to the source of raw material. Yes, because जो large industries होती है ना, उनका raw material heavy होता है, तो इसीलिए लोकेशनल कंस्ट्रेंट आ गया। मतलब वहीं पे सेटअप करोगे जहां पर रॉ मटेरियल। इसका मतलब जिस स्टेट में रॉ मटेरियल ज्यादा है वहां पे ज्यादा यूनिट्स खोलेंगे, वो ज्यादा डेवलप हो जाएगी, बाकी अंडर डेवलप्ड रह जाएंगी। लेकिन स्मॉल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, कोई लोकेशनल कंस्ट्रेंट नहीं है। इसका रॉ मटेरियल जनरली लाइट इन वेट होता है। You can set small units anywhere. अगर आपको पर्टिकुलर रीजन में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वहां पे खोल लो, ठीक है, आपका रॉ मटेरियल कहीं पर भी पहुंच जाएगा, लाइट इन वेट है, कोई ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, तो इसका कोई लोकेशनल कंस्ट्रेंट भी नहीं होता। ठीक है, ओके। देन स्मॉल इंडस्ट्रीज also provide ample opportunities for entrepreneurship. Entrepreneur पता है आपको? The one who has the ability to, conceive of an idea, ability to take risk, ability to reap profits out of that given idea. So there are many people. In India, we generally judge, children by their academic skills. है ना, मार्क्स अच्छे आए तो बच्चा अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है तो सक्सेसफुल होगा, ऐसा नहीं होता। Some students, they have other skills, और वो लेटेंट होती हैं स्किल्स। लेटेंट मींस आपके अंदर है, सोई हुई हैं, ठीक है, वो लेटेंट स्किल्स वो कई बारी तो सोई की सोई रह जाती हैं क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आप सोचते भी हो अरे काश मैं बिजनेस कर सकता, काश मेरे पास ऐसे पैसे होते इतने कि मैं ये बिजनेस कर सकता, तो मैं कहाँ का कहाँ पहुंचा देता अपने बिजनेस को। ठीक है, लेकिन वो काश रह जाता है। क्यों? आपके पास फंड्स नहीं है। लेकिन स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए इतने फंड्स की जरूरत नहीं है। सो इफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ओपन, इट गिव्स जो लोगों की स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, दे कैन आल्सो बी चैनलाइज्ड। सो इट प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर entrepreneurship, because in this segment business ideas can be converted into reality without much investment and without so much of formalities. ठीक, okay, so next is ये इसका मैंने बता दिया, abilities for entrepreneurship या opportunities for entrepreneurship. next बेटे, low cost of production। जो स्मॉल सेक्टर है उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होता है। रीजन, दे मेक यूज ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है, एंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ स्मॉल बिजनेस, रनिंग अ स्मॉल बिजनेस, दे आर ऑन द लोअर साइड बिकॉज ऑफ लो ओवरहेड एक्सपेंसेस। जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं वो ओवरहेड एक्सपेंसेस मींस फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे कि स्टाफ हो गया। अब अगर आप लार्ज इंडस्ट्री खोलोगे तो आप एमबीए को अपॉइंट करोगे, आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, हर एक को स्पेशलाइज्ड पर्सन हेड कर रहा है, तो नेचुरली उसको आप एमबीए करोगे, क्वालिफाइड पर्सन को हायर, तो उसको सैलरी भी अच्छी देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये आपके ओवरहेड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन स्मॉल इंडस्ट्रीज में जनरली ओवरहेड्स कम होते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है। ठीक है, सो इस करके इनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ठीक है, देन ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, क्विक एंड टाइमली डिसीजंस कैन बी टेकन विदाउट कंसल्टिंग मेनी पीपल as it happens in large sized organization. So new business opportunities can be captured at the right time. So small business में आप क्विक डिसीजन ले सकते हो, क्विक डिसीजन मेकिंग।
क्योंकि स्मॉल स्केल जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं। सो सोल प्रोप्राइटर का ये फीचर था, एडवांटेज था, क्विक डिसीजन मेकिंग, रिमेंबर। So they could take the decisions quickly because they did not have to consult others. दूसरों को कंसल्ट करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्रॉस करने पड़ते हैं, only then you can take the decision. So sometime you may lose the opportunity, but in case of small industry, opportunity can be reaped appropriately. ठीक है? So this was about the role of स्मॉल बिजनेस। यहां तक बेटे किसी को कोई डाउट